Hello students, so in the previous lecture we were talking about the different work of the scientist, and the last topic we did discuss was the immersion effect. ठीक है, so immersion की studies के बाद ही पता चला कि there are two photosystems working simultaneously, that is photosystem 1 and photosystem 2, P680 and P700. ठीक है, one is activated at P700 nanometers, another one is activated at P680 nanometers. ठीक है, so just take a representation कि जिसमें बता रहा था कि यार एसेसरी पिगमेंट्स है, दे आर ट्रांसफरिंग द लाइट टू द मेन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल ए. सो इट्स गोना बी लाइक दिस, द मेन पिगमेंट है अपना क्लोरोफिल ए, और दिस आर लाइक accessory pigments the main pigment is center में. ठीक है, so these are termed as antenna molecules. Accessory pigment जो है they are termed as antenna molecules. Okay, and this is the chlorophyll A. This is chlorophyll A. ठीक है, तो जो भी लाइट एनर्जी ये लोग एब्जॉर्ब करेंगे, they are going to be transferred ultimately to whom? To chlorophyll A. और क्लोरोफिल ए क्या करेगा इससे? क्लोरोफिल इसको यूज करके कन्वर्ट करेगा द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. ओके, जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैप किया जाएगा और क्या बनाया जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू एटीपी एंड एनएडीपी. ठीक है, ठीक है, एंड द इलेक्ट्रॉन हैज टू पास थ्रू अ प्रोसेस नोन एज ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ओके, डन. सो दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम केमिकल, आई एम सॉरी, फ्रॉम the light to the chemical energy is known as quantum conversion, है ना, because this is light to chemical. ठीक है, chemical is ATP and NADP. This is known as quantum conversion. ठीक है, simple and easy. So now we'll put a difference between the PS1 and PS2. ठीक है, so these are antenna molecules, accessory pigments, and they are transferring the light energy to the chlorophyll A, and chlorophyll A is getting charged up and using that light energy to make chemical energy, and that is known as quantum conversion. Okay, ATP और NADP का formation होता है. Now if I put a difference between PS1 and PS2, photosystem 1 and photosystem 2, photosystem 1 and photosystem 2 की अगर बात करते हैं, so one of the photosystem, it gets activated when it receives the wavelength of light that is 700 nanometer. So मैं लिखता हूं activates at 700 nanometer wavelength का जब लाइट मिलेगा तब. और P photosystem 2, it activates at 680 nanometer wavelength का लाइट मिलेगा तब. ठीक है, so that is the reason we can also term the photosystem 1 as P700. P700 भी बोल सकते हैं because it gets activated at 700 nanometers, and this can be termed as P680 because it gets activated at 680 nanometers wavelength का लाइट मिलेगा तब एक्टिवेट हो जाएगा. ठीक है, फिर अपन ने बनाया था थाइलाकॉइड का स्ट्रक्चर देखा था. तो थाइलाकॉइड के स्ट्रक्चर की अगर बात करें, लेट्स से इस तरीके से दिखाया था ना थाइलाकॉइड का स्ट्रक्चर, है ना.
सो जो रीजन बाहर की तरफ है, ठीक है, दिस रीजन इज नोन एज नॉन अप्रेस्ड रीजन. The region is known as non-oppressed region. This region, ऊपर वाला, ठीक है. और जो रीजन बीच में है, this is known as oppressed region. ठीक है. सो थाइलोकॉइड्स के बीच का जो रीजन है दैट इज टर्म्ड एज द एप्रीस रीजन, और जो ऊपर वाला रीजन है इट इज टर्म्ड एज द नॉन एप्रीस रीजन. तो नॉन एप्रीस रीजन में होता है फोटोसिस्टम 1 दैट इज P700, और जो थाइलोकॉइड्स के बीच का रीजन है वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है फोटोसिस्टम 2 दैट इज P680. ठीक है. और फोटोसिस्टम 1 इट ऑल्सो अकर्स इन स्ट्रोमा लैमेला. स्ट्रोमा लैमेला बनाया था ना, जो ब्रिज बनाया था थाइलोकॉइड्स को कनेक्ट कर रहा था, दैट इज स्ट्रोमा लैमेला. ठीक है. यहां पे नहीं है. नाउ अगर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का रेशियो देखते हैं, if we check for the chlorophyll A and chlorophyll B ratio in photosystem 1, the ratio is 2 to 4 का रेशियो, 2 से 4 का रेशियो है क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी का. और अगर फोटोसिस्टम 2 की बात करते हैं तो उसमें जो रेशियो है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी का दैट इज 1.4, और यहाँ पे दैट इज 2 to 4. ठीक है. अगर क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स का रेशियो देखते हैं, मैं सेक्शन हटाता हूं. Okay. Is it clear? Activates at 700, activates at 680. इसलिए नाम क्या देता है P700, P680. जो नॉन एप्रेस्ड रीजन है, ऊपर वाला रीजन है थाइलोकॉइड्स का, वहां पे क्या होगा, फोटोसिस्टम 1 होगा. जो बीच में रीजन से उधर क्या होगा, फोटोसिस्टम 2 होगा. स्ट्रोमा लैमेला में फोटोसिस्टम 1 होगा, फोटोसिस्टम 2 सिर्फ यहीं पे होगा. A by B का रेशियो 2 to 4 और A by B का रेशियो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी का रेशियो है 1.4. ठीक है. नाउ ओके. अगर क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स का रेशियो देखते हैं, क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स, अगर चेक करें सो दैट इज 25:1. 25:1 का रेशियो क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स का. और अगर रेशियो चेक करते हैं फॉर द फोटोसिस्टम 2 क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स का रेशियो, क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स का रेशियो अगर चेक करते हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी 5:1. दैट इज गोइंग टू बी 5:1 का रेशियो. ठीक है. ठीक है. डन. समझ में आया. ओके. नाउ इफ यू टॉक अबाउट, अगर इसको आगे देखें, आगे डिफरेंस लेते हैं, तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा, फोटोसिस्टम 1 के साथ जो चीज एसोसिएटेड, एक रेड कलर्ड पिगमेंट एसोसिएटेड, दैट इज नोन एज साइटोक्रोम BNF. इट्स अ आयरन कंटेनिंग प्रोटीन. कौन है आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, क्या नाम है उसका, साइटोक्रोम BNF. साइटोक्रोम BNF क्या है ये, दिस इज आयरन कंटेनिंग प्रोटीन. ठीक है. इसलिए इट इज ऑल्सो नोन एज रेड कैरियर. इसका एक और नाम है रेड कैरियर, क्योंकि इसके अंदर आयरन होता है एंड इट गिव्स अ रेड कलर अपीयरेंस. ठीक है. एक और चीज यहां पे देखने को मिलती है, दैट इज देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नोन एज F0F1 कॉम्प्लेक्स. क्या कहा जाता है कॉम्प्लेक्स को,
F0 F1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये F0 F1 कॉम्प्लेक्स माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया के F0 F1 कॉम्प्लेक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए क्लोरोप्लास्ट के F0 F1 कॉम्प्लेक्स से, तो सिंपली व्हाट वी डू इज वी डिफरेंशिएट इट बाय पुटिंग C हियर। ओके, अगर मैं M लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का F0 F1 कॉम्प्लेक्स, बट मैं लिख रहा हूं C, दैट मींस क्लोरोप्लास्ट का F0 F1 कॉम्प्लेक्स। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है ATPase एंजाइम। इसका दूसरा नाम है ATPase एंजाइम। ये ATP बनाने में हेल्प करता है। क्या बनाने में हेल्प करता है, ATP बनाने में हेल्प करता है, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ATP। मैं रिपीट करता हूं। ओके, यहां पे फोटो सिस्टम 2 में अगर देखें तो यहां पे भी साइटोक्रोम BNF प्रेजेंट है। ठीक है, साइटोक्रोम BNF प्रेजेंट है यहां पे भी, और आयरन, अच्छा दिस इज द सेम, राइट लिख देता हूं। अच्छा, ये वाला कॉम्प्लेक्स दैट इज F0 F1 कॉम्प्लेक्स इज एब्सेंट, मतलब नो ATP प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन फोटोसिस्टम 2, और यहां पे ATP प्रोडक्शन होता है। यहां पे लिख देता हूं मैं एक पॉइंट, ATP प्रोड्यूस्ड, सिंपल एंड इजी। ठीक है, समझ में आ गया ना आप लोगों को कि यार फोटो सिस्टम 1 में ATP का प्रोडक्शन होगा, यहाँ पे ATP का प्रोडक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पास F0 F1 कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसके पास ATPase एंजाइम नहीं है फोटो सिस्टम 2 के पास, इसके पास अवेलेबल है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ATP का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ विल टॉक अबाउट द एक्चुअल प्रोसेस कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, तो यहां पे मैं किस स्ट्रक्चर की बात करूं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जैसे कि ये था अपना थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड बनाया था ना अपन ने, और थाइलाकॉइड के अंदर क्या था, एम्प्टी स्पेस जिसको ल्यूमिन बोला था, और वहां पे क्लोरोफिल होता है। अब थाइलाकॉइड इट्स अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। क्या है, थाइलाकॉइड डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट, और आई विल बी जूमिंग दिस स्ट्रक्चर। अपन मेम्ब्रेन के अंदर देखेंगे, ये पोर्शन को देखते हैं कि यहां पे क्या चीजें अवेलेबल है, मतलब पूरे मेम्ब्रेन में सब चीजें अवेलेबल होगी, बट मैं स्पेसिफिक रीजन बोलता हूं कि यहां पे क्या अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको जूम करके अगर मैं देखूं, इसको जूम करते हैं, यही चीज को जूम करते हैं यहां पे, तो यहां पे काफी सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस अवेलेबल है, जो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगी और क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी। दैट इज द प्रोसेस नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो अभी यहां पे मैं बनाता हूं पहला कॉम्प्लेक्स, दैट इज पी फोटो सिस्टम 2, दैट इज 680 नैनोमीटर वाला, तो उसको मैं यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं। मेम्ब्रेन के अंदर एसोसिएटेड है, मैं यहां पे दिखा रहा हूं। ठीक है, और यहां पे मैं एक और कॉम्प्लेक्स दिखाता हूं। सो अगर ये मेम्ब्रेन मैंने बनाई है, ये मेम्ब्रेन मैंने बनाई है, तो ये मेम्ब्रेन के बाहर का रीजन है। तो बाहर का रीजन मतलब कौन सा रीजन हो गया, स्ट्रोमा वाला रीजन हो गया। और मेम्ब्रेन के अंदर का रीजन कौन सा हो गया, तो मेम्ब्रेन के अंदर का रीजन जो हो गया दैट इज ल्यूमेन। मेम्ब्रेन के अंदर का रीजन क्या हो गया, ल्यूमेन हो गया। द आउटर साइड इज स्ट्रोमा, द इनर साइड इज ल्यूमेन, द आउटर साइड इज स्ट्रोमा, द इनर साइड इज ल्यूमेन। ठीक है, और मेम्ब्रेन में क्या है, देयर इज
P680 फोटो सिस्टम 2, P680, ठीक है। P680 के साथ यहां पे एक और चीज प्रेजेंट है, दैट इज फेओफाइटीन। फेओफाइटीन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब क्या होता है, P680 कब एक्टिवेट होता है, जब उसको 680 नैनोमीटर वेवलेंथ का लाइट मिलेगा। सो नाउ लेट्स टेक, यहां पे फोटोन्स आए, कौन आए, फोटोन्स आए, 680 नैनोमीटर्स वेवलेंथ होनी चाहिए। तो क्या होगा, P680 एक्टिवेट हो जाएगा, P680 क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और एक्टिवेट होने की वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, द इलेक्ट्रॉन्स वुड स्टार्ट एक्सट्रूडिंग, द इलेक्ट्रॉन्स वुड स्टार्ट मूविंग, जंपिंग फ्रॉम द हाई एनर्जी लेवल, ओके, बिकॉज दे हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फोटोन्स। तो वो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, वो क्या करने लगेगा, दे वुड स्टार्ट जंपिंग। तो मैं यहां पे दिखाता हूं, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द P680 दे गेट एक्साइटेड एंड दे स्टार्ट जंपिंग, ठीक है। So when they start jumping, they are accepted by the colorless pigment known as phaeophytin. उसे कौन accept करेगा? They are accepted by the colorless pigment phaeophytin, okay? और ये phaeophytin क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर देगा एक दूसरे movable complex को। This complex is not movable because this is attached to the surface, but there is another moving complex available in the membrane, and that complex is known as प्लास्टोक्विनोन। क्या नाम है उसका, प्लास्टोक्विनोन। लेट्स मेक द प्लास्टोक्विनोन हियर, PQ लिख रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पे नाम लिख देता हूं मैं, प्लास्टोक्विनोन, ठीक है। सो फेओफाइटीन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट एक्सेप्ट किया था, वो उस इलेक्ट्रॉन को कहां रिलीज करेगा आप, it is going to release the electron to phaeoplastic-quinone। किसको देगा, पास करेगा, प्लास्टोक्विनोन को पास करेगा। तो प्लास्टोक्विनोन अपने ऑक्सीडाइज स्टेट से कहां चला जाएगा, रिड्यूस स्टेट पे चला जाएगा, ठीक है। द प्लास्टोक्विनोन इज गोइंग टू मूव फ्रॉम इट्स ऑक्सीडाइज स्टेट टू द रिड्यूस स्टेट। अपने ऑक्सीडाइज स्टेट से कौन से स्टेट पे चला जाएगा, रिड्यूस स्टेट पे, क्योंकि उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, ओके। सो फ्रॉम द ऑक्सीडाइज स्टेट इट कम्स टू द रिड्यूस स्टेट, ठीक है। और फिर क्या किया जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन था, जब प्लास्टोक्विनोन ने एक्सेप्ट किया, जब प्लास्टोक्विनोन रिड्यूस हुआ, तो उस टाइम पे प्लास्टोक्विनोन क्या करता है, स्ट्रोमा में से H+ को पकड़ता है और उस H+ को पंप करता है ल्यूमेन के अंदर। क्या करता है, स्ट्रोमा में से H+ को पंप करता है, कहां पे, ल्यूमेन के अंदर पंप करता है, ठीक है। जब प्लास्टोक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो प्लास्टोक्विनोन ने एक हाइड्रोजन पंप का भी काम करेगा। तो वो क्या करेगा, स्ट्रोमा में से H+ को एक्सेप्ट करके अंदर की तरफ पंप करेगा, ल्यूमेन की तरफ पंप करेगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन आया था प्लास्टोक्विनोन के पास, वो अब कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, सो इट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड टू द रेड पिगमेंट, ओके, रेड कैरियर, दैट इज साइटोक्रोम BNF। तो यहां पे आ जाता है अपना एक और, क्या नाम है, साइटोक्रोम BNF। BNF, ठीक है। तो अभी प्लास्टोक्विनोन जो रिड्यूस हो गया था, उसने इलेक्ट्रॉन अब किसको ट्रांसफर किया, द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर टू BNF, और फिर से वो खुद क्या हो जाएगा, इट वुड गेट ऑक्सीडाइज्ड अगेन, ठीक है। तो यहां से हाइड्रोजन मैंने दिखाया, पर मैं हाइड्रोजन यहां से भी दिखा सकता हूं, क्योंकि एक ही चीज है ये। This can get complicated if you are not able to understand it. So ध्यान से सुनना मैं जो बातें बोल रहा हूं। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो एक जगह से दूसरे, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के पास ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, और कुछ नहीं है यहाँ पे। अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ हो गया, साइटोक्रोम BNF के पास आ गया, दिस इज द रेड कैरियर।
अब साइटोक्रोम BNF क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है एक दूसरे कंपोनेंट के पास, दैट इज प्लास्टोसाइनिन के पास। कौन से कॉम्प्लेक्स के पास ट्रांसफर करता है, इट ट्रांसफर्स इट टू दी अनदर कॉम्प्लेक्स, अनदर मूविंग कॉम्प्लेक्स आप बोल सकते हो, दैट इज, मैं रेड में दिखाता हूं मूविंग कॉम्प्लेक्सेस, PC। ठीक है, मैं नाम लिख देता हूं प्लास्टोसाइनिन। दैट इज प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अब कहां आता है, इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम BF से पास किया जाता है, किसके पास, तो प्लास्टोसाइनिन के पास। ठीक है, और प्लास्टोसाइनिन से इट गोज टू अनदर फोटो सिस्टम। कौन सी है दूसरी फोटो सिस्टम, दूसरी फोटो सिस्टम का नाम है P700। अनदर फोटो सिस्टम इज P700। अभी इलेक्ट्रॉन कहां आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया P700 फोटो सिस्टम के पास। ठीक है, और फिर P700 जो फोटो सिस्टम था, फोटो सिस्टम 1, जब वो रिसीव करता है 700 नैनोमीटर्स वेवलेंथ का लाइट, तो वो एक्साइट हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन उसके पास आया था वो इलेक्ट्रॉन से एक्साइट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया है, ये इलेक्ट्रॉन आया है P680 के पास से। ठीक है, तो जब यहां पे इट रिसीव्स फोटोन्स और सनलाइट ऑफ P700 वेवलेंथ, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से एक्साइट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स कहां से मिले इसको, इसको इलेक्ट्रॉन्स मिले P680 के पास से इलेक्ट्रॉन्स मिले। और जब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, दैट इज आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। कौन एक्सेप्टर है यहां पे, दैट इज दी आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करके इट इज गोइंग टू बी टेकन अप बाय द अनदर कॉम्प्लेक्स व्हिच इज एसोसिएटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। वो कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड है स्ट्रोमा में, और उसका नाम है फेरोडॉक्सिन। क्या नाम है उसका, उसका नाम है फेरोडॉक्सिन। तो मैं लिखूंगा FD। क्या लिख रहा हूं मैं, FD। उसका नाम अपन यहां ऊपर लिख देते हैं फेरोडॉक्सिन। ओके, सो इलेक्ट्रॉन अब कहां पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन 680 से निकल के पहुंच गया 700 के पास, 700 से पहुंच गया आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स से पहुंच गया फेरोडॉक्सिन के पास। अब फेरोडॉक्सिन क्या करेगा, फेरोडॉक्सिन उस इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा, फेरोडॉक्सिन उस इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा, और यूज करके NADP प्लस से बनाएगा NADPH। NADP प्लस को क्या करेगा, उसको रिड्यूस करेगा और बना देगा NADPH। क्या बना देगा, NADPH बना देगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन कहां पे आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया यहां पे NADPH के पास। H कहां से लिया, H का कंट्रीब्यूशन हो रहा है स्ट्रोमा से। H का कंट्रीब्यूशन कहां से हो रहा है, H का कंट्रीब्यूशन हो रहा है स्ट्रोमा से। ठीक है, तो आप बोलोगे सर NADP तो चलो समझ गए कहां पे था, H कहां से आया, तो H आया स्ट्रोमा से आया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहां से आया, इलेक्ट्रॉन आया P680 से। सिंपल एंड इजी। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, P680 के जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए थे, वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके कहां गए, फेओफाइटिन के पास गए, विच इज अ कलरलेस क्लोरोफिल। वहां से ट्रांसफर किया इलेक्ट्रॉन्स को प्लास्टोक्विनोन के पास। तो प्लास्टोक्विनोन जो ऑक्सीडाइज स्टेट में था, कौन सा स्टेट में आ गया, रिड्यूस स्टेट में आ गया। ठीक है, और वो क्या करेगा, उसी के साथ हाइड्रोजन H+ को पंप करेगा कहां पे, ल्यूमेन में। कहां से पंप कर रहा है, फ्रॉम द स्ट्रोमा, एंड देन द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू द रेड कैरियर, दैट इज साइटोक्रोम BNF। BNF को पास किया जाएगा। BNF इस इलेक्ट्रॉन को पास करेगा प्लास्टोसाइनिन के पास, विच इज अ मूवेबल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये मूवेबल प्रोटीन है, ये मूवेबल प्रोटीन है, और ये भेजेगा किसके पास, फोटोसिस्टम्स 1 के पास। दिस इज फोटोसिस्टम 1। ओके, तो इलेक्ट्रॉन आ गया फोटोसिस्टम 1 के पास। यहां पे अपन लिख देते हैं, दिस इज फोटोसिस्टम 1 एंड दिस इज फोटोसिस्टम 2।
ठीक है, 1 के पास भेजेगा। अब जब फोटो सिस्टम 1 को 700 नैनोमीटर वेवलेंथ का लाइट मिलेगा तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिसीव किया था इसने 687 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएंगे, और एक्साइटेड होने की वजह से दे वुड स्टार्ट जंपिंग एंड दे वुड बी एक्सेप्टेड बाय द आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स उसको एक्सेप्ट करेगा और फिर वो कहां पे रिलीज कर दिए जाएंगे, दे वुड बी रिलीज टू दी फेरोडॉक्सिन, अनदर कॉम्प्लेक्स व्हिच इज लोकेटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ये बाहर की तरफ है ना, ये मेम्ब्रेन के अंदर है, ये मेम्ब्रेन की बाहर है, फेसिंग द स्ट्रोमा। समझ में आ रही बात। और वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को यूज करके NADP+ का रिडक्शन करेगा और क्या बनाएगा, NADPH बनाएगा। तो इलेक्ट्रॉन तो कहां से आया, इलेक्ट्रॉन यहां से आया है, ओके, और H कहां से आता है, स्ट्रोमा से आता है। स्ट्रोमा में काफी सारे H+ अवेलेबल हो गए, तो क्या मिलेगा आपको, NADPH मिलेगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ डार्क रिएक्शन। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर, आई एम सॉरी, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर में ध्यान दिया हो तो आपको पता होगा कि यार लाइट रिएक्शन में NADPH का फॉर्मेशन होता था, सिंपल एंड ईजी, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन आता है कि यार इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हुआ और यहां पे आया और यहां पे उसने NADPH बना दिया, ठीक है। तो अगर ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करते हुए यहां पे जाएगा, NADPH बनता जाएगा। NADPH फिर किस काम में आने वाला, डार्क रिएक्शन में काम में आने वाला है। तो एक पॉइंट आएगा जब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का तो अमाउंट खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि इसका तो हर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कहां जा रहा है, यहां पे आ रहा है। Every electron that is being taken up or released by the photosystem 2 is accepted by photosystem 1 and it is used in reduction of NADP+ to NADPH. तो at a particular time period or after some given time यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी तो ये तो प्रोसेस खत्म हो जाएगा, प्रोसेस रुक जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो अवेलेबल ही नहीं होंगे। तो कितना भी फोटोन्स आ गए यहाँ पे, फोटोन्स आएंगे, बट बिकॉज देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द होल प्रोसेस कैन नॉट बी रिपीटेड। तो अब क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स का तो सप्लाई कंटिन्यू देना पड़ेगा, कंटिन्यूएशन में देना पड़ेगा, तभी ये प्रोसेस हो पाएगा। तो इसीलिए आपको याद होगा अपने फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में लिखा था वाटर, ठीक है। तो वाटर इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, वाटर इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां पे ये जो मैंने कॉम्प्लेक्स दिखाया था उसका नाम मैंने यहां पे नहीं लिखा है, उसका नाम है OEC। क्या नाम है, OEC, दैट इज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। क्या कहा जाता है उसे, उसे कहा जाता है OEC। मैं इसको रब कर दूं, यहां पे नाम लिख देता हूं। अपन मेम्ब्रेन देख रहे हैं, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन। सो OEC का फुल फॉर्म क्या है, ऑक्सीजन evolving complex. It is known as oxygen complex, या फिर it is known as MN complex. It is known as MN complex भी बोलते हैं, okay. It has a huge amount of Cl and C+ ions, this MN complex, and it is also known as the water splitting complex. इसका तीसरा नाम है water splitting complex। This is known as water splitting complex, ठीक है। तो OAC क्या करता है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये वाटर को स्प्लिट करता है, एंड द टर्म वी यूज इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। तो जब वाटर को स्प्लिट किया जाएगा, 2H2O लेते हैं अपन यहाँ पे, आई होप आपको ये दिख रहा है, 2H2 अगर यहाँ पे लेते हैं तो ये स्प्लिट होगा और क्या बना के देगा, सो दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस 4H+, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस 2 oxygen, okay, and it is going to produce 4 electrons. क्या क्या मिलेगा, तो इट इज गोइंग टू गिव 4H+, 4 electrons and 1 O2, ठीक है। तो ये O2 तो क्या करेगा, प्लांट रिलीज कर देगा,
ये इलेक्ट्रॉन्स कहां पे आने वाले, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, ठीक है, यहां से कहां पास हो गए, 680 के पास हो गए, और 680 से आगे पास होते जाएंगे, आगे पास होते जाएंगे। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, वो सोर्स कौन है, वो सोर्स है वाटर मॉलिक्यूल। द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वाटर मॉलिक्यूल। और ये 4H प्लस तो यहां पे रहेगा, कहां पे रहेगा, ल्यूमिन में रहेगा। द 4H प्लस वुड रिमेन इन द ल्यूमिन while the electrons are going to be transported and the oxygen is going to be released in the atmosphere। ठीक है, so now you know कि 680 को इलेक्ट्रॉन्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो 680 को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल। और कौन सा प्रोसेस है यहां पे, द प्रोसेस इज नोन एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है तो क्या मिलता है, 4H प्लस मिलते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं एंड 1 O2 मिलता है। मैंने 10 नहीं लिखा, ये 1 ऑक्सीजन लिखा है। ठीक है, क्लियर है। नाउ वी नो कि यार इलेक्ट्रॉन का सोर्स क्या है, और अपन को एक और बात पता चल गई कि यार जो इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हुआ है वो जाता है 700 के पास और फिर यहां पे ट्रैप हो जाता है। मतलब द इलेक्ट्रॉन इज नॉट कमिंग बैक। और ये जो चीज बनेगी NADPH जो बनेगा, NADPH किस काम में आने वाला है, इट इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर द कार्बन फिक्सेशन, डार्क रिएक्शन में काम में आने वाला है। ठीक है, तो बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज नॉट कमिंग बैक टू P680, दिस प्रोसेस इज नोन एज नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। This process is known as non-cyclic ETS, non-cyclic electron transport system। ठीक है, या फिर we can also put it as non-cyclic photophosphorylation। ठीक है, समझ में आ गया। Why have I termed it as non-cyclic ETS? Because the electrons which are escaping from 680 they are not coming back to 680। ठीक है, 680 से चालू हुआ था, यहाँ पे आके ट्रैप हो गया है। और ये NADPH फिर क्या बनाने वाला है, NADPH तो बनाने वाला है CO2 फिक्सेशन के काम में आएगा, सप्लाई करेगा एनर्जी वहां पे। ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो एज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कमिंग बैक, इट इज टर्म्ड एज नॉन-साइक्लिक ETS। ठीक है, डन। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर आपको देखने को मिलेगा नॉन साइक्लिक ETS में, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स, इलेक्ट्रॉन्स का सप्लाई खत्म ना हो जाए, इसलिए वाटर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता रहेगा। नाउ लेट्स से अगर NADPH किस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, कार्बन फिक्सेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। बट अगर कार्बन का अमाउंट कम है, देयर इज नो कार्बन अवेलेबल। ठीक है, तो कार्बन अगर अवेलेबल नहीं होगा तो कार्बन फिक्सेशन तो पॉसिबल है नहीं, और कार्बन फिक्सेशन अगर पॉसिबल नहीं है तो ये जो NADPH बना रखा है, ये NADPH किस काम में आएगा, ये NADPH कुछ काम में ही नहीं आने वाला है। सो व्हेन द NADPH इज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ कार्बन फिक्सेशन, द प्रोपोर्शन ऑफ NADPH इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है ना, तो आई एम रैपिंग दिस थिंग डाउन। आप वीडियो पॉज करके लिख लेना। तो ये जो आपने पढ़ा, दिस वाज नॉन साइक्लिक ETS। अभी मैं एक दूसरी कंडीशन लेता हूं जहां पे मैं ये बता रहा हूं कि व्हेन CO2 इज एब्सेंट, अगर CO2 एब्सेंट है तो क्या नहीं होगा, देयर इज नो कार्बन there is no carbon fixation, that means no formation of food। ठीक है, there is no carbon fixation taking place। so if there is no carbon fixation taking place, amount of NADPH इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जितने भी NADP प्लस थे वो तो NADPH बना देंगे, तो NADPH इंक्रीज हो जाएगा एंड अमाउंट ऑफ NAD प्लस ये क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना,
तो अगर CO2 एब्सेंट है तो देयर इज नो कार्बन फिक्सेशन टेकिंग प्लेस, और कार्बन फिक्सेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए थी आपको कहां से मिल रही थी, NADPH से मिल रही थी, तो NADPH का प्रोपोर्शन अब बढ़ जाएगा क्योंकि फिक्सेशन तो हो ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से NADP प्लस का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो यार NADP प्लस का प्रोपोर्शन काफी ज्यादा है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहां तक पे आए थे वो इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट हो गए, ठीक है, सो व्हेन दे आर गेटिंग एक्साइटेड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, एज देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ NADPH and there is no availability of NAD plus, they are again going to be transferred back to plastoquinone. It is going to be transferred back to plastoquinone. ठीक है, वो फिर से plastoquinone को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो यहां पे क्या हुआ, वी स्टार्टेड विथ, यहां से एक्साइट हुआ, यहां पे वापस प्लास्टोक्विनोन के पास आएगा, प्लास्टोक्विनोन वापस यहां पे रिटर्न कर देगा, मतलब दिस इज गोइंग टू अकर इन साइक्लिक फॉर्म। ये क्या करेगा, साइक्लिक फॉर्म में अकर करेगा। तो मैं यहां पे रब करता हूं और मैं दिखाता हूं, लेट्स टेक द ब्लू कलर से दिखाते हैं। द सेकेंड कंडीशन आई एम टॉकिंग इज द इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड from ferredoxine to plastoquinone, because there is no requirement of NADPH, क्योंकि NADPH का प्रोपोर्शन काफी ज्यादा है, कार्बन एब्सेंट है, CO2 फिक्सेशन करना नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा और यहां पे आने के बाद प्लास्टोक्विनोन फिर से क्या करेगा, भेजेगा BF के पास, BF से फिर से क्या होगा, P700 के पास आएगा, P700 से फिर से क्या होगा, जब फोटोन्स आएंगे 700 नैनोमीटर वेवलेंथ पे तो इलेक्ट्रॉन फिर से एक्साइट होगा, फिर से एक्साइट होकर ऊपर जाएगा, फिर से इस तरीके से रिपीट होता रहेगा, साइक्लिक फॉर्म में जाता रहेगा। तो ये वाले प्रोसेस में आप इस चीज को भूल जाओ, दिस इज नॉट टू बी टेकन नाउ, दिस इज गॉन। ठीक है, आपको इतना ही देखना है। अगर CO2 फिक्सेशन हो रहा है तो आप ये पूरा कंसिडर करोगे नॉन साइक्लिक ETS, बट अगर कार्बन फिक्सेशन नहीं हो रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स फिर से रिटर्न कर दिए जाएंगे प्लास्टोक्विनोन को। तो जब प्लास्टोक्विनोन को रिटर्न कर दिए जाएंगे तो ये जो पूरा प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का, बिकॉज यहां से इधर आया, इधर से वापस इधर, कंटिन्यूस पैटर्न में चलेगा, सो दिस इज टर्म्ड एज साइक्लिक ETS, दिस इज टर्म्ड एज साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। क्यों साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बोल रहा हूं, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर रिटर्न्ड बैक टू प्लास्टोक्विनोन एंड फ्रॉम प्लास्टोक्विनोन इट इज अगेन टेकन अप बाय 700, सो इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अगेन एंड अगेन, इसलिए क्या कहा जाएगा, साइक्लिक ETS कहा जाएगा। समझ में आ गया, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल इफ CO2 is absent। डन, सिंपल एंड इजी। ठीक है, या फिर वी कैन ऑल्सो पुट, एक और पॉइंट में लिख सकता हूं कि यार अगर 680 नैनोमीटर वेवलेंथ का लाइट एब्सेंट है तभी भी ये प्रोसेस होने वाला है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ द लाइट, एक पॉइंट तो मैंने यहां पे लिख रखा है, इफ द लाइट रेंज इज लेस देन 680 नैनोमीटर, अगर 680 नैनोमीटर वेवलेंथ का लाइट है उससे भी कम अवेलेबल, लेस देन 680 नैनोमीटर वेवलेंथ का लाइट, तभी भी क्या होगा, साइक्लिक ETS होगा। और दूसरा कब होगा, जब CO2 एब्सेंट है। ठीक है, एक और पॉइंट डाल देता हूं, अगर NADPH बनाने वाला जो एंजाइम है रिडक्टेस, NADPH रिडक्टेस अगर एब्सेंट है, अगर NADPH रिडक्टेस एंजाइम एब्सेंट है, अगर लाइट इज लेस देन 680 नैनोमीटर्स, या फिर CO2 एब्सेंट है, ये तीन कंडीशंस में आपको कौन सा ETS देखने को मिलेगा, यू विल बी ऑब्जर्विंग यू विल बी ऑब्जर्विंग साइक्लिक ETS, आपको साइक्लिक ETS देखने को मिलेगा। समझ में आ गया ना। नॉर्मल कंडीशंस में क्या है कि अगर CO2 प्रेजेंट है
कार्बन फिक्सेशन करना है तो आपको NADPH चाहिए, तो NADPH बनता रहेगा, यूज में आता रहेगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स मिलते रहेंगे। बट अगर CO2 एब्सेंट है तो आपको NADPH की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, और NADPH की जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो NADPH बनेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन का ट्रैपिंग होगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन would be transferred back to plastoquinone and this is going to be repeated again and again. So it is going to be termed as cyclic ETS. तो cyclic ETS में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? फोटो सिस्टम 1 पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज P700 पार्टिसिपेट कर रहा है। और cyclic ETS आपको कब देखने को मिलेगा? So that is going to be observed if the wavelength of light is less than 680 nanometers, या फिर CO2 एब्सेंट है, मतलब कार्बन फिक्सेशन नहीं हो रहा है, या फिर NADPH रिडक्टेस एंजाइम जो यहाँ पे NADPH का फॉर्मेशन करता था वो एब्सेंट है तब। ठीक है, सो इफ आई टेक दिस एज अ होल, दिस इज नॉन साइक्लिक, एंड इफ आई टेक दिस मच, इट इज साइक्लिक। ओके, oh god, so now let's put a difference between non-cyclic ETS and cyclic ETS. Non-cyclic ETS and cyclic ETS से एक डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, सो नॉन साइक्लिक में क्या हो रहा है, कौन कौन से फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व है? तो यार फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है, दैट इज P700 आपने देखा, और दूसरा कौन सा इन्वॉल्व है? फोटो सिस्टम 2, दिस वर्क्स एट 700 नैनोमीटर्स, दिस वर्क्स एट 680 नैनोमीटर्स। ठीक है, साइक्लिक वाले में कौन सा फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है? तो साइक्लिक में फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व है। आई होप यू आर पेइंग अटेंशन। ठीक है, मतलब 680 नैनोमीटर्स वेवलेंथ की लाइट रिक्वायर्ड है। ठीक है, दूसरी बात 1, दिस इज 700। ठीक है, 1 is 700। क्लियर है? नाउ क्या चीज का फॉर्मेशन होता है? तो यहां पे फॉर्मेशन हो रहा है NADPH का, अगर आपने ध्यान दिया हो तो NADPH का फॉर्मेशन होता है जो फोटो सिस्टम साइक्लिक ETS में एब्सेंट है। ठीक है, यहां पे नॉन साइक्लिक में देयर वाज एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द वाटर। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर इज रिक्वायर्ड। कौन है एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर? वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, और उस वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो रहा था? फोटोलाइसिस हो रहा था। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा था? फोटोलाइसिस कर रहा था। तो यहां पे लिखते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो यहां पे कोई एक्सटर्नल डोनर की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं, यहाँ पे तो कोई एक्सटर्नल डोनर की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है क्या? सो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये तो साइक्लिक फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन एक बार 700 के पास पहुंच जाता था, फिर से इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती थी। 700 के पास पहुंचने के बाद वो तो ट्रैप हो जाता था। कहाँ पे ट्रैप हो जाता था? NADPH में ट्रैप हो जाता था। और ये दोनों में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ATP दोनों में बनता है। तो यहां पे जो ATP बनेगा दैट इज नोन एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहां पे जो ATP बनेगा उसको आप बोल सकते हो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। के थ्रू ATP बन रहा है। ठीक है, और यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के थ्रू ATP बन रहा है।
ठीक है, ठीक है। सो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, और यहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, मतलब दोनों में एटीपी तो बनता ही है। क्लियर? सो लेट्स मूव अहेड and talk about the redox potential, because यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आप देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर देख रहे हो फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू द अनदर कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू द रेडॉक्स पोटेंशियल। ठीक है, तो ये रेडॉक्स पोटेंशियल अगर हाई है, इफ द रेडॉक्स पोटेंशियल ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज हाई, या फिर इफ द रेडॉक्स पोटेंशियल ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज लो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर जो होते हैं वो नॉर्मली इट टेक्स प्लेस फ्रॉम द लो रेडॉक्स पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम द लो रेडॉक्स पोटेंशियल टू द हाई रेडॉक्स पोटेंशियल। ठीक है, फ्रॉम द लो टू द हाई redox potential, and such kind of transport is known as downhill movement. This is known as downhill movement. ठीक है, if the electrons are moving from the redox potential, low redox potential to the high redox potential, ठीक है, and if the electrons are moving from हाई redox पोटेंशियल टू द लो redox पोटेंशियल, अगर हाई redox पोटेंशियल से लो redox पोटेंशियल पे मूव कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज द अपहिल मूवमेंट, दैट इज नोन एज अपहिल मूवमेंट। तो पूरा की पूरा जो मूवमेंट आपने देखा फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू अनदर डिपेंड्स ऑन दी हाई redox पोटेंशियल या फिर लो redox पोटेंशियल। तो अगर लो से हाई की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है तो वी टर्म इट एज व्हाट, वी टर्म इट एज डाउनहिल ट्रांसपोर्ट, और अगर हाई से लो की तरफ होता है तो वी टर्म इट एज अपहिल मूवमेंट। ठीक है, सो नाउ इन केस ऑफ द फोटो सिस्टम जो अभी अपन ने देखा P680 और P700 की अगर बात करें, सो स्टार्टिंग फ्रॉम, फिर से मैं दिखाता हूं यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पे वी हैड 680 और यहाँ पे वी हैड 700, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स था। ठीक, और बीच में दूसरे कैरियर्स थे, प्रोटीन कैरियर्स। तो फर्स्ट जो मूवमेंट था इट वाज इस तरीके से था, नीचे से ऊपर था, एंड देन इट वाज लाइक दिस, और फिर अगेन इट वाज एक्साइटेड, और यहाँ पे एनएडी पेज बनता है। ठीक है, सो ये जो मूवमेंट है नीचे से ऊपर की तरफ, ओके, सो दैट इज 0.8। जो फोटो सिस्टम 1 है, फोटो सिस्टम P680 जो है उसका जो रेडॉक्स पोटेंशियल है दैट इज 0.8। कितना था रेडॉक्स पोटेंशियल फोटो सिस्टम 2 का? दैट वाज 0.8, और जो फेओफाइटिन था उसका रेडॉक्स पोटेंशियल था -0.6। फेओफाइटिन का रेडॉक्स पोटेंशियल कितना है? सो उसका रेडॉक्स पोटेंशियल है 0.6, और P680 का रेडॉक्स पोटेंशियल कितना है? सो उसका रेडॉक्स पोटेंशियल है 0.8। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है ना, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है दैट इज फ्रॉम हायर रेडॉक्स पोटेंशियल टू द लोअर रेडॉक्स पोटेंशियल, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है। सो ये जो ट्रांसपोर्ट हुआ दिस इज नोन एज, नीचे से ऊपर जो ट्रांसपोर्ट हुआ दैट इज नोन एज अपहिल ट्रांसपोर्ट। यहां से जो ये मूवमेंट हुआ दिस इज नोन एज अपहिल ट्रांसपोर्ट, और जो मूवमेंट यहां से इलेक्ट्रॉन का यहां तक होता है ठीक है, ये जो मूवमेंट हो रहा है दिस इज नोन एज डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। ये जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का दैट इज डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। ठीक है,
ठीक है, और फिर से ये जो मूवमेंट आपको दिखेगा, दिस इज अपहिल ट्रांसपोर्ट, दिस इज अपहिल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो अगर आप यहां पे देखो, सो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट था वो आपको पता चल गया, दैट इज फ्रॉम हायर रेडॉक्स पोटेंशियल टू दी लोअर रेडॉक्स पोटेंशियल, और फिर यहां से क्या है, लोअर रेडॉक्स पोटेंशियल टू हायर रेडॉक्स पोटेंशियल, एंड फ्रॉम हायर टू लोअर अगेन, ठीक है। तो हायर टू लोअर अगेन मतलब क्या हो गया, अपहिल हो गया। फ्रॉम लोअर टू हायर, तो लोअर टू हायर क्या है, डाउनहिल, तो डाउनहिल हो गया। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो मैंने दिखा रखा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का पाथवे, अगर आप इसे टिल्ट करके देखो तो इट अपीयर्स लाइक दिस। अगर आप इसको टिल्ट करके देखो तो इट अपीयर्स लाइक दिस। ठीक है, दिस वॉज अपहिल, फिर यहां से यहां तक डाउनहिल, और यहां से यहां तक अपहिल, ठीक है। यहां पे लिखता हूं मैं 680, और यहां पे क्या लिखे 700, ठीक है। और यहां पे मैं लिख देता हूं क्या बना था, NADPH बना था। क्लियर है? तो ये कौन सा अल्फाबेट रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग Z स्कीम, ओके, Z अल्फाबेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको इट इज ऑल्सो नोन एज Z स्कीम, या फिर दिस इज नोन एज हिल स्कीम, ठीक है। तो ये Z स्कीम या हिल स्कीम आपको कौन से ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देखने को मिली है, सो दिस इज ओनली विजिबल इन नॉन साइक्लिक ETS। आपको नॉन साइक्लिक ETS में ही देखने को मिलेगा, साइक्लिक ETS में देखने को नहीं मिलेगा। क्या, Z स्कीम, ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो नाउ आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है क्यों हो रहा है, आपको पता है, क्योंकि नाउ द मूवमेंट इज फ्रॉम द रेडॉक्स पोटेंशियल की वजह से मूवमेंट होता है, हायर टू लोअर या लोअर टू हायर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है मेम्ब्रेन के अंदर अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू, इसलिए क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पे फिर से रिटर्न होकर आता है तो आप बोलते हो साइक्लिक ETS है, और अगर इलेक्ट्रॉन जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से रिटर्न होकर नहीं आता, मतलब 680 से स्टार्ट हुआ, रिलीज हुआ और 700 के पास आ गया और फिर से 680 के पास नहीं जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे, इट्स अ नॉन साइक्लिक ETS। Z स्कीम इज ओनली विजिबल इन दी नॉन साइक्लिक ETS, ठीक है। सो आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर नाउ, ठीक है। सो आज का जो लेक्चर था इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट बात करी है मैंने आपसे, ओके, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज अपन ने पढ़ा है, दैट इज नॉन साइक्लिक ETS एंड साइक्लिक ETS, ठीक है। सो मेक श्योर, ओके, मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को अच्छे से सुनो, ओके, अच्छे से समझो। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से एक बार रिपीट करो, और फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके मैसेज करके पूछो कि सर ये क्या आपने बोला, हमें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और नीट में अगर इसकी बात करें तो नीट में भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सारे आपके MCQ इसके ऊपर बेस्ड है जो आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। सो मेक श्योर यू गो थ्रू द लेक्चर प्रॉपर्ली। डन। लेक्चर जब आप देख रहे हो आपको नोट्स भी बनानी है, और नोट्स बनाने के बाद आपको मुझे व्हाट्सएप करनी है नोट्स, ठीक है। ओके, सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर, इन द नेक्स्ट लेक्चर विल मूव अहेड, बट बिफोर दैट आप इस लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट लेक्चर। नहीं तो यहाँ पे कुछ अगर समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट लेक्चर में तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। सो मेक श्योर यू गो थ्रू द लेक्चर प्रॉपर्ली, ठीक है। सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर, ओके, बाय बाय।